हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 350 एंड 350A, 350B, 351। तो चलें स्टार्ट करें। चैप्टर 4 स्पेशल डायरेक्टिव्स, अध्याय 4 विशेष निर्देश। 350 article says about the language to be used in representations for redress of grievances. Language to be used in representations for redress of grievances. Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer, grievance to any officer or authority of the union or a state in of the languages sorry 350 article says about the language to be used in representations for redress of grievances. Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the union or a state in any of the language used in union or in the state as the case may be. 350A 350A article says about the facilities for instruction in mother tongue at a primary stage. It shall be the endeavor of the every state and of every local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups, and the president may issue such directions to by state as he considers necessary or proper for securing the provisions of such facilities. 350B article says about the special officer for linguistic minorities. Special officer for linguistic minorities. Number 1, there shall be a special officer for linguistic minorities to be appointed by the president. Number 2, it shall be the duty of the special officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under this constitution and report to the president upon those matters at such intervals as the president may direct, and the president shall cause all such reports to be laid before each house of parliament and sent to the government of the states concerned, and sent to the governments of the states concerned. 351 article 351 article says about the directive principles 351 article says about the directive for development of the Hindi language. It shall be the duty of the union to promote the spread of the Hindi language. It shall be the duty of the union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of the expression without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the English schedule, and by drawing
wherever necessary or the desirable for its necessary or desirable for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages. इसको दोबारा पढ़ लेती हूँ. 351 आर्टिकल सेज अबाउट डायरेक्टिव for the development of the Hindi language. It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India, and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius the forms, style and expression used in Hindustani and in the other languages of India specified in the 8th schedule, and by drawing wherever necessary or the desirable for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondary or other languages. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ. अध्याय 4 विशेष निर्देश. 350 अनुच्छेद क्या बताता है? ये 350 अनुच्छेद बताता है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में. प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा. 350 का अनुच्छेद बताता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान कराना. 350 का अनुच्छेद बताता है कि प्राथमिक यानी प्राइमरी स्टेज पर जो मदर टंग है उसमें एजुकेशन की जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको उपलब्ध कराना है. प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा. और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है. अनुच्छेद 350 खा बताता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति. भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा. नंबर 2, विशेष अधिकारी का ये कर्तव्य होगा. नंबर 2, विशेष अधिकारी का ये कर्तव्य होगा. क्या होगा कर्तव्य? कि वे इस संविधान के अधीन जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे, उनकी जांच पड़ताल करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जिसे राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे. और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा. अनुच्छेद 351 बताता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश की बात कर रहा है. ये अनुच्छेद संघ का यह कर्तव्य होगा. संघ की जो यूनियन है उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी कि वे हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, हिंदी भाषा का जो प्रसार है वो बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामरिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके. क्या कहा जा रहा है? कि सामरिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाषा की अन्य भाषाओं में भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणता
अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश संघ का ये कर्तव्य होगा कि वे हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वे भारत की सामरिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषा की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। कल मैं पढ़ूंगी आपात उपबंध भाग 18, पार्ट कॉन्स्टिट्यूशंस पार्ट 18, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।